Good morning, students. Welcome again in the chapter number 14, that is factorization. But today, we people will make the special utilization of the algebraical identities. By making the use of identities, we people will be able to find out the factors. Clear, students? So whatever the algebraical identities I will write on the board, you people have to note down all the activities, all the identities, all your notebook. Then after you will learn how we people are going to solve the questions. Similar, next exercise 14.3 will also make you able to solve the algebraic expressions. Division will be there. Division of the algebraic expressions. So 14.2 and 3 both are interconnected exercise. But 14.4 that is useless. So we people will not do 14.4. There is only to find the error, correction we have to do. So that is useless exercise. We people will not do 14.4 exercise at all. None of the question will be in the examination from 14.4. So students, first of all, identities. Everybody knowing. So let me see the identities. Algebraic identities. When people first use the square of the two terms, means a plus b whole square. This is simply a plus b whole square, and this can be read as first term square plus second term square plus 2 times a into b, or 2 times first term into second term. Second again with negative sign, you know, first term minus second term, subtraction is there, whole square, that is a square plus b square minus 2ab, 2 into first term into second term. Third is a square minus b square. It is equal to sum and product of sum and subtraction of both the terms. Clear, everybody? So these three identities we people will make maximum utilization in the present exercise. Clear, everybody? So let me see how we people can solve the question on the basis of identities. Clear, everybody? So let me see. So question number 1, factorize number 1 is here. A square plus 8a plus 16. A square plus 8a plus 16. This is the question here. We have to simply do the factorization. So I can make the use of the identity as first term square plus second term square plus 2 into first term into second term. So how many people can proceed? First term whole square I will write a square plus
is the perfect square number, that is 16 plus 8. This type of number is here. So I will make the perfect square to the first two terms. मुझे पहली दो टर्म्स को परफेक्ट स्क्वायर की काउंटिंग में लाना है. किस तरह से? I can write this as first term whole square plus second whole square. ये मेरे पास बना फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस क्या रिजल्ट होता है? यूज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab is equal to a plus b whole square. I have written first square plus second square plus 2 into first into second plus 2 into first is a and second is 4. So this is nothing but a square plus b square plus 2ab, that goes equal to a square plus b square plus 2ab is equal to a plus b whole square. So this whole result will come a plus b, means a plus 4 whole square. I can write this expression as a plus 4 whole square. मतलब a plus 4 into a plus 4. So these are the factors. Clear everybody? Now we can see question number 2. Second part beta, you see, that is p square minus 10p plus 25. So first of all you arrange the perfect square term, means p square plus 25 minus 10p. So this can be written as first term whole square plus second term whole square. Now the sign is here, minus 2 into first term, that is p, and second term is 5. तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट इसके बराबर बना बेटा a square plus b square minus 2ab. इस टाइप का ये रिजल्ट बन गया यहाँ पे. तो ये किसके बराबर होगा? a minus b whole square, मतलब p minus 5 into p minus 5. तो ये मेरे पास इस तरह का इसका रिजल्ट बन जाता है. आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं. फर्स्ट टर्म whole square plus 25 minus 10p. I have arranged the first two term in the form of perfect square. ये बना p whole square plus 5 whole square minus 2a. a की वैल्यू है p और b का वैल्यू कितना है? 2ab. और वो रिजल्ट बना a square plus b square minus 2ab. और वो रिजल्ट किसके बराबर होता है? a minus b whole square. a minus b whole square, बिकॉज यहाँ पे लास्ट में नेगेटिव साइन आ रहा है. Thereafter, third portion you can do, fourth you can do, I will do 6. Whatever the typical portion I will do 121 b square minus 88 bc plus 16c square. पहले हम अरेंज करेंगे कौन सी टर्म को? स्क्वायर वाली को. तो इसको मैं कैसे अरेंज करेंगे बच्चा? 121 b square
प्लस 16c स्क्वायर माइनस 88bc। अब ये पहली दो टर्म को परफेक्ट स्क्वायर करके लिखेंगे, वो बनेगा 11b होल स्क्वायर प्लस 4c होल स्क्वायर माइनस 2a। 11b एंड b इज b का वैल्यू जो है वो 4c है, तो ये मेरे पास किस टाइप का बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab टाइप का रिजल्ट बना। तो इसको मैं फर्दर लिखूंगा a माइनस b होल स्क्वायर, और आप इसको लिख सकते हैं 11b माइनस 4c इंटू 11b माइनस 4c। इसका ये रिजल्ट हमारे पास बन गया, फैक्टराइजिंग हो गया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 7 जो है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, n प्लस n होल स्क्वायर माइनस 4lm, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस आइडेंटिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, इस पार्ट को। ये क्या बना, a प्लस b होल स्क्वायर मतलब यहां से बनेगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm। अब ये फर्दर क्या बनेगा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब यहां से लाइन टर्म्स बनी है दो, तो ये बना माइनस के 2lm, और ये रिजल्ट किस टाइप का बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab टाइप, मतलब l माइनस m होल स्क्वायर का टाइप बना। ये बना l माइनस m इंटू l माइनस m टाइप का। क्लियर एवरीबॉडी, l माइनस m इंटू l माइनस m टाइप का ये रिजल्ट मेरे पास बन गया। Then after question number 8, a power 4 plus 2a2 b2 plus b power 4। अब इस क्वेश्चन को भी हम अरेंज करेंगे, a4 प्लस हाइस्ट पावर टर्म्स को अरेंज करेंगे। दिस नंबर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। ये बना फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये फर्दर रिजल्ट बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर के बराबर, मतलब इसको लिखोगे आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइप में। क्लियर एवरीबॉडी, तो ये मेरे पास जो रिजल्ट है रिगार्डिंग टू द आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर एंड a माइनस b होल स्क्वायर टाइप में, ये क्वेश्चन मेरे कवर हो जाते हैं। अब दूसरी आइडेंटिटी के रिगार्डिंग जो रिजल्ट हम यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन पहले मेरे पास फर्स्ट पार्ट 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ये पहला हो गया मेरे पास। फिर दूसरा भी इधर लिख देता हूं मैं, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब ये भी देख लो आपको, और तीसरा क्वेश्चन भी देख लो। तीसरा क्वेश्चन इजी है, मैं पोस्ट करूंगा।
पार्ट नंबर 4, it is 16x5 minus 144 this question. So let me see. अब मेरे पास तो दो आइडेंटिटी है, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। अब हम किस तरह से इन टर्म्स को परफेक्ट स्क्वायर बनाएं? मैं इसको लिखूंगा 2p होल स्क्वायर, है ना, 2p होल स्क्वायर माइनस साइन को लिखूंगा 3q होल स्क्वायर। तो किस टाइप का बनाएंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप बना। इसको मैं क्या एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखूंगा, मतलब ये मेरे पास बनेगा 2p माइनस 3q और 2p प्लस 3q। इतना बड़ा डिफरेंस है क्योंकि आइडेंटिटी यहाँ पर बनी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्दर आया रिटर्न सम एंड सब्ट्रैक्शन का प्रोडक्ट, एक बार सम और एक बार सब्ट्रैक्शन, दोनों का प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पॉसिबल है? 63 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 112 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें यहाँ पे कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन क्या लेंगे? 3 लेंगे तो नहीं बनेगा, 7 ले लो, 7 9 माइनस ये, इस तरह से मेरे पास ये रिजल्ट बन गया 7 इंटू 9a स्क्वायर माइनस 60 b स्क्वायर। कॉमन तो कॉमन ही रखिए। अब ब्रैकेट के अंदर इसको और इसको स्टैंडर्डाइज करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, 3a होल स्क्वायर माइनस 4b होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर रहे, एक बार प्लस में लिखेंगे 3a प्लस 4b और एक बार माइनस में लिखेंगे 3a माइनस 4b और ये बात खत्म। यहीं पे ही इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 144 भी परफेक्ट स्क्वायर है, कॉमन क्या लाएंगे? हम यहाँ से 1 कॉमन आएंगे, x पावर 1 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 16x पावर 4 माइनस 144x पावर क्या बनेगा? 2। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसको मैं लिखूंगा 4x पावर 2 होल पावर 2 माइनस 12x होल पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। 4 4 16x पावर 4, 12 144x पावर 2 बना। अब इसको मैं लिखूंगा x इंटू 4x स्क्वायर प्लस 12x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 12x, और इस तरह से इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। अरे बेटा, तो इस तरह से ये मेरे पास रिजल्ट जो है वो बन जाएगा। अगर यहाँ से भी अगर आपको कॉमन एक्स लेना तो आप ले सकते हैं, कॉमन रहेगा, क्लियर? बट हम यहीं तक इसको छोड़ देते हैं। अब उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 करने वाला हूं। Question number 5 beta, yes, it is L plus m whole square minus L minus m whole square। यहाँ पर अलग आइडेंटिटी यूज करो, ये क्या बनेगा? L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm माइनस ब्रैकेट L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2lm। याद रखना a प्लस b होल स्क्वायर, देख लो a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे और रिजल्ट को टैली करेंगे, क्या बनेगा बेटा? l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm, अब माइनस से मल्टीप्लाई
एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2LM क्या बन जाएगा? एल स्क्वायर कट एम स्क्वायर कट 2LM प्लस 2LM टोटली क्या बनेगा? 4 टाइम LM। इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज 25A स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर प्लस 28BC minus 49C square. There are 4 terms which are included here. अब रिजल्ट होता है या तो होता है प्लस 2AB होता है या माइनस 2AB होता है। मतलब लास्ट में 2 टर्म्स हो तो मुझे ग्रुपिज्म ऑफ द टर्म्स जो है वो पता चल जाता है। अब यहाँ पे 2 टर्म इकट्ठी जा रही है, BC आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई 2 टर्म्स आपस में कंबाइन करी जाएंगी, 2 टर्म्स आपस में कंबाइन करी जाएंगी। और उसको हम कैसे कंबाइन करेंगे? हम 2 टर्म्स को यहाँ पे कंबाइन करेंगे किस तरह से? ये देख लो, the term is minus 4B square and this one, okay, ये बनेगा minus 4B square minus 49C square plus 28BC plus 25A square। तो इसको हम किस तरह से अरेंज करें? वो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर। मैं यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बनेगा 4B स्क्वायर प्लस 49C स्क्वायर माइनस 28BC। इन तीनों टर्म्स को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्लस 25 और यू कैन टेक common as negative here to watch, ठीक है? तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी अरेंज हो जाएगा। नेगेटिव को मैंने कॉमन दिया है यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म में से, इस तरह से पूरे एक्सप्रेशन में से। क्लियर बेटा? तो अब मैं करूंगा पहली 2 टर्म्स को अरेंज करूंगा। यहां तक मैं इसको अगर ब्रैकेट में लिख लेता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। यहां पे आप इसको ब्रैकेट में लिख दो। अब मेरे पास A स्क्वायर मतलब 2B होल स्क्वायर प्लस 7C होल स्क्वायर माइनस 2B और 7C, यहां तक ये बन गया माइनस 5A होल स्क्वायर, यहां तक ये बना। अब आगे देखो, इसमें क्या बनेगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, मतलब ये बनेगा मेरे पास 2B माइनस 7C होल स्क्वायर माइनस 5A होल स्क्वायर। ये अब मेरे पास रिजल्ट बन रहा है। अब इसको मैं पूरे को लिख दूंगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखूंगा एक बार माइनस में, तो ये बनेगा मेरे पास A प्लस B माइनस ब्रैकेट 2B माइनस 7C A प्लस B प्लस 5A क्लियर इंटू माइनस 2B माइनस, इस माइनस को हम बाहर करते हैं तो क्या बनेगा 2B माइनस 7C माइनस 5A
और ये ब्रैकेट को हमने बाहर का बाहर ही यहाँ पे रहने दिया है। क्लियर? तो इस तरह से मेरे पास स्क्वायर वेक्टर्स जो है वो मिल जाएंगे। क्लियर बेटा? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ऐसी तीन टर्म्स को कंबाइन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टाइप में। तो मेरे पास यहाँ से स्टैंडर्ड रिजल्ट बनेगा और उसी तरह से मैंने उनको रेट कर दिया। थर्ड टर्म को यहाँ पे अकेले ही रहने दिया, उसको भी स्टैंडर्ड रिजल्ट में यूज कर दिया एज a square minus b square, that is equal to a plus b into a minus b. Next question now, question number 3. Question number 3, again factorization. ax square plus bx. Second, 7b square 21 cube. 2x cube plus 2xy plus 2xz square. अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x की कम वैल्यू क्या है ना 1, तो x 1 बाहर आ गया, अब क्या बचेगा ax plus b, ये इसका फैक्टर हो गया। क्लियर? यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे x 1 है, तो लीस्ट पावर क्या है 1, तो वो कॉमन आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनना चाहिए, तो क्या बना ax स्क्वायर प्लस bx। अब यहाँ पे 7 और 21, तो इसमें से क्या कॉमन आया बेटा, 7 तो कॉमन आ ही जाएगा, अंदर क्या बनेगा p स्क्वायर प्लस 7 3 जा 21 क्यूब। वेरी सिंपल। थर्ड 2 है, 2 है, 2 है, तो 2 कॉमन ले लो, x पावर 3 है, x पावर 1 है, x पावर 1 है, तो x पावर 1 कॉमन आएगा, y अलग है, z अलग है, वो कॉमन है नहीं आएंगे, तो क्या बनेगा x पावर 2 प्लस y प्लस z square, because z is the singleton itself here. Now I will do question number 5. 5 में मैं कर देता हूँ ln प्लस l ब्रैकेट क्लोज प्लस n प्लस 1। अब यहाँ से क्या कॉमन है इसका और इसमें से, ऑलरेडी ब्रैकेट दी है, इसमें कॉमन है n, अंदर क्या बचेगा m प्लस 1। अब यहाँ पर इसका ग्रुप कर दो प्लस 1 m प्लस 1, तो ब्रैकेट के ये और ये सेम है, क्या बनेगा m प्लस 1 इंटू l प्लस 1, जैसे पिछले का बोला था, ब्रैकेट के बाहर का और ब्रैकेट के अंदर का टर्म सेम। क्वेश्चन नंबर 6, y इंटू y प्लस z प्लस 9 y प्लस z। एक बात तो ब्रैकेट के अंदर की टर्म y प्लस z सेम है, तो y प्लस z एज इट इज, और ब्रैकेट के बाद y प्लस इंटू y प्लस 9, ये इसके फैक्टर्स हो गए। क्लियर एवरीबॉडी? तो इस तरह से आप लोग इन क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन 8 करूं, क्वेश्चन नंबर 8, लेट मी सी।
का ही एक पार्ट, व्हाट्स दैट, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, वेयर इज द टर्म विच कैन गिव द कॉमन, ये और ये और ये और ये ग्रुपिज्म कर दो, 10ab प्लस 5b ब्रैकेट में प्लस 4a प्लस 2। अब 10ab और 5b में क्या कॉमन है, 5 और कॉमन होगा b, अंदर क्या बचेगा 2a प्लस 1, अब यहां से प्लस 2 कॉमन लो, 4 और 2 2a प्लस 1। तो इस तरह से मेरे पास क्या बन गया, फिक्स्ड ब्रैकेट के अंदर की टर्म 2a प्लस 1 इंटू 5b प्लस 2, इसके फैक्टर्स हो गए, अरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स विद ग्रुपिज्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a पावर 4 माइनस b पावर 4, हमने तो स्क्वायर ही लिख दिया था, तो मैं इसको प्रोडक्ट स्क्वायर का भी होल स्क्वायर लिखूंगा, इसको लिखूंगा a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू एक बार प्लस में और एक बार में माइनस में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। अब ये फर्दर रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई रिजल्ट नहीं है, तो ये अपने आप में करेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही रहेगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। अब ये जो क्वेश्चन है सेकंड आप कर सकते हो इसमें से, अभी मैं आपको करूंगा थर्ड पार्ट इसका। फर्स्ट सेकंड सेम है तो सेकंड आपको करना है, थर्ड फोर्थ सेम है तो थर्ड मैं करता हूं, 4 आपको करना है। x पावर 4 माइनस ब्रैकेट y प्लस z होल पावर 4, इसको फिर अरेंज कर दो स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ऐसे लिख दो तो भी चलेगा। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये बनेगा प्लस a प्लस b, a प्लस b और a माइनस माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b, ये a है, यहां पर ही साइन में चेंज करना है, एक बार प्लस लिख दिया, ये b टर्म है और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b a माइनस b, all the terms have been written in systematic way। और लेट मी सी क्वेश्चन नंबर 5, 4 को आपको करना है क्लियर, यहां पे आपको अरेंज करना होल स्क्वायर टर्म्स को। Part number 5, it is a power 4 minus 2a2 b2 plus b power 4। तो पहले 4 का लिख लो, अगेन रिपीट द क्वेश्चन, इसको क्या लिखूंगा, a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a2 b2। अब ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस, ये किसके बराबर बन गया बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab टाइम्स का z बना। तो इसको मैं लिख देता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ये साइन क्या है, नेगेटिव है, इसलिए आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं।
अब हम ये चीज जो समझ रहे हैं a plus b whole square और a raised to power 4, we understood how we can convert the square of the terms. Now we have question number 5. Again it's the right. First part here, p square 6p plus 8. अब मेरे पास क्या रूल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो परफेक्ट स्क्वायर ना बने, इसका रूल है फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म को कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा p स्क्वायर इंटू 8 इक्वल टू 8p स्क्वायर। अब जो मिड टर्म है ये बड़ा 8p स्क्वायर, मिड टर्म क्या है 6p। अब 8 ऐसे लाना है कि मुझे 6p मिल जाए, 8 ऐसे करना है, 8 बनता है 8 हो तो 8 और 1 कितने हो गए 9, 8 में से 1 माइनस होंगे तो 7 हो गए। अब 8 को करने के लिए 4 2 सा 4 इंटू 2 8 हो गए और 4 प्लस 2 कितने हो गए 6। तो इसको मैं लिखूंगा p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p। तो मैंने मिडिल टर्म को क्या लिख दिया बेटा 4p प्लस 2p करके प्लस 8 कर दिया। और डिवाइसिबिलिटी का मिडिल टर्म इनटू 2 पार्ट, 4 इंटू 2 8 और 4 प्लस 2 6। अब फर्स्ट और लास्ट में कॉमन लीजिए आप लोग, पहली 2 में से कॉमन, लास्ट की 2 में से, अंदर क्या बचेगा p प्लस 4, आगे प्लस 2p प्लस 4, तो क्या बनेगा p प्लस 4 इंटू p प्लस 2, p प्लस 4 इंटू p प्लस 2। अब इसमें ही क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड आपको करना है, थर्ड में कर देता हूं। It is p square plus 6p minus 16। अब यहां से फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या आएगा वो बताएगा, माइनस 16p स्क्वायर आएगा प्रोडक्ट का। तो किन्हीं दो संख्या को मल्टीप्लाई करें, 16 आए और उनको प्लस माइनस करें तो 6 आए, 8 2 सा, ये बनेगा p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। अब पहले 2 में से कॉमन और लास्ट के 2 में से कॉमन। इसका फैक्टराइजेशन हो गया। इसी तरह से आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं, दिस इज नोन एज द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो ये आपको फॉर्म लेना है एक्सरसाइज 14.2। आफ्टर दैट वी विल डू 14.3 एक्सरसाइज।